CNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت صوبوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے تاکہ کینیڈا میں کام کرنے والے ہر ورکر کو ضرورت کے تحت سال میں ایک بار 10 دن کی پیڈ سک لیو دی جا سکے۔ The government will continue discussions with the provinces without delay on ensuring that as we enter the recovery phase of the pandemic, every worker in Canada who needs it has access to 10 days of paid sick leave a year. ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کینیڈین شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اطراف میں موجود لوگوں کا خیال کریں اور صحت عامہ کے اصولوں پر عمل کریں تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ محتاط طریقے سے معیشت اور عوامی مقامات کو کھولیں گے۔ Everyone has a responsibility to themselves and to the people around them. So keep practicing physical distancing. This is how we protect ourselves, protect our loved ones, and protect the most vulnerable. Moving forward with reopening must happen gradually and carefully. کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس سال کورونا کے باعث کئی تہوار گھروں میں اور آن لائن منائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی خدمات کا سب کو اعتراف کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ویڈیو پیغام کا آغاز السلام علیکم سے کیا اور کورونا کے دوران کینیڈین مسلمانوں کی مدد کے جذبے کو سراہا۔ Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں بسنے والے مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی خدمات کا سب کو اعتراف کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخر میں مسلمانوں کے لیے عید خوشی ہے اور مسرت کا تہوار ہے۔ اس سال کورونا کے باعث کئی تہوار گھروں میں اور آن لائن منائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر ضرورت مندوں کو یاد بھی رکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کی جاتی ہے، تاہم اس بار عید کچھ الگ ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں تاکہ کورونا وبا سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹ میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے آنے والی خبر المناک ہے۔ تمام فیملیز اور دوست جنہوں نے حادثے میں اپنی جانیں دی ہیں اور متاثرین سب کے لیے دعا گو ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 84,700 ہو گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6,424 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 84,700 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6,424 تک جا پہنچی ہے۔ کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اس وقت تک 47,411 کرونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,984 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 25,500 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,984 ہے۔ ٹورنٹو میں شہری انتظامیہ نے شہر کے 850 پارک شہریوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ حکومتی اداروں کے سوشل ڈسٹینس قائم رکھنے کے مسلسل اعلان کے باوجود پارکس کھولنے کے بعد عوام کا جم غفیر پارکوں میں نکل آیا اور سوشل ڈسٹینس قوانین کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ عوام کی اس لاپرواہی اور غفلت پر شہری انتظامیہ اور اعلیٰ حکام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت سرزنش کی ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے ٹرینی بیل بورڈز پارک میں لوگوں کے ہجوم پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس منظر کا موازنہ راک کانسرٹ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جانب سے اس قدر غفلت سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تاہم پارکس میں واش روم نہ کھلنے کے سبب وہاں آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بڑی تعداد میں شہریوں کے پارکس میں آنے سے جا بجا گندگی کے ڈھیر لگ گئے، جس کے سبب وہاں رہنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ البرٹا میں 6,860 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 135 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں اب تک 2,517 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 157 ہے۔ دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی لاک ڈاؤن نے مسلمانوں کو مختلف انداز میں عید منانے پر مجبور کیا، جبکہ اس بار کی عید مختلف طریقے سے منائی گئی۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी लॉकडाउन ने मुसलमानों को मुख्तलिफ अंदाज में ईद मनाने पर मजबूर किया, जबकि इस बार की ईद मुख्तलिफ तरीके से मनाई गई। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के बाद ईद का दिन जब मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज ईद अदा करते हैं, इसके बाद दोस्तों घर वालों के साथ दावतें की जाती हैं और लोग एक दूसरे के घरों पर जाते हैं और मिठाई, केक और दीगर तहाइफ एक दूसरे को देते हैं। ताहम कोरोना वायरस के सबब दुनिया के अक्सर ममालिक की तरह कनाडा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ है। समाजी दूरी पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। मसाजिद बंद हैं, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है। अक्सर लोगों ने रमजान मुबारक भी अकेले गुजारा और ईद की खुशियां भी अकेले मनाई। कनाडा में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं, इन्हें कैनेडियन शहरियत देने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सियासी पनाह के मतलाशी अफराद जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें कैनेडियन शहरियत दी जाए। कम्युनिटीज की बढ़ती हुई तादाद, वकला और सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से एक्शन का मुतालबा किया है। 100 से ज्यादा अफराद कैनेडियन वजीर आजम के दफ्तर के बाहर जमा हुए, जो मास्क पहने हुए और प्ले कार्ड्स और हैटी के झंडे उठाए हुए थे। क्यूबिक में सियासी पनाह के अक्सर मतलाशी अफराद का ताल्लुक हैटी से है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन अफराद को कैनेडियन शहरियत दी जाए जो हमारे लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत हमारे कारकुनों की कुर्बानियों को तस्लीम करे। सेहत के बहरान की कनाडा के सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सूबे क्यूबिक में सियासी पनाह के मुतलाशी गैर यकीनी हैसियत और अफराद के मईशत में किरदार पर रोशनी डाली है। ऐसे अफराद मीट पैकिंग प्लांट्स और गोदामों में तवील अरसे तक काम करते हैं या तवील मुद्दती निगहदाश्त वाले घरों में उम्र रसीदा अफराद की खिदमत करते हैं। ऐसी कम तनख्वाहों वाली मुलाजमतों में गुजारा करना मुश्किल होता है। ताहम ये लोग डी प्रोटेक्शन का सिलसिला दोबारा शुरू होने के बाद कनाडा में नहीं कर सकेंगे। भारत का चीन के सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में झड़प के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी लद्दाख में झील प्यांगांगसू के करीब दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बाद चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार कर लिया और उनका असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। ताहम भारतीय फौज की हाई कमान की जानिब से बातचीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये मामला इतना संगीन था कि भारतीय आर्मी चीफ ने वजीर आजम मोदी को इस पर ब्रीफिंग देते हुए उसे शदीद झटका करार दिया। दूसरी जानिब भारतीय फौजी तर्जुमान ने अपने फौजियों की गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि जब मीडिया इस तरह की खबरें शाया करता है तो इससे हमारी कौमी मुफादात को ठेस पहुंचती है। भारतीय मीडिया ने कहा कि दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख में अपनी नफरी में इजाफा कर रही है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई मकामात पर खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय फौज ने लद्दाख के इलाके गालोइन में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। 5 और 9 मई को भी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असले के बजाय मुकों और आहनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई अहलकार जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिनमें दोनों अफवाज के दरमियान तकरार देखी जा सकती है। भारत का चीन के साथ सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी सरहदी तनाजा बढ़ता जा रहा है। नेपाली वजीर आजम पी ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें काला पानी, लेपिया, धोरा, लीपोलैक के इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया, जिस पर भारत अपना दावा करता है। उन्होंने नेपाल में कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने एक हालिया इजलास में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर गौर किया है ताकि रूस और चीन को मौसर तंबीह की जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक हालिया इजलास में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर गौर किया है ताकि रूस और चीन को मौसर तंबीह की जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 15 मई के रोज ट्रंप इंतजामिया के एक आला सतह के इजलास में जल्द ही तजुर्बाती एटमी धमाके करने पर भी गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने 1992 में अपना आखिरी तजुर्बाती एटमी धमाका किया था, लेकिन तब तक वो 1032 एटमी धमाके कर चुका था, जिनमें दूसरी जंग अजीम के दौरान 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले 2 एटमी बमों के धमाके भी शामिल थे। तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने आने वाले दिनों या महीनों में एक बार फिर से तजुर्बाती एटमी धमाके शुरू कर दिए तो इससे दुनिया में एक नई और पहले से ज्यादा शदीद एटमी दौड़ शुरू होने का खतरा है। ऐसी सूरत में न सिर्फ सोवियत यूनियन और चीन बल्कि एटमी सलाहियत रखने वाले दीगर ममालिक भी खामोश नहीं बैठेंगे और मुमकिन तौर पर वो भी अपने एटमी बमों के तजुर्बाती धमाके एक बार फिर शुरू कर सकते हैं।
भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज 25 मई को मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज ईद की इज्तिमात पर पाबंदी के बायस शहरियों ने घरों पर नमाज ईद अदा की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज 25 मई को मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी के बाद शहरियों ने घरों पर नमाज ईद अदा की, जबकि बांग्लादेश में ईद से एक रोज पहले लॉकडाउन में नरमी करते हुए कार में सफर की इजाजत दे दी गई थी। ईद उल फितर के मौके पर भारतीय वजीर आजम और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी और पैगाम जारी किया। भारतीय वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने भाईचारे और लोगों की सेहत से मुतालिक पैगाम भी लिखा। इसके अलावा कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। भारत में उलमा ने भी शहरियों से लॉकडाउन की सूरत हाल में नमाज ईद घरों पर अदा करने का कहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 55,02,730 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,47,761 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 55,02,730 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,47,761 हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 99,300 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 16,86,436 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 3,541 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 3,44,481 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,340 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,56,827 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 4,024 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,38,917 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,985 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 390 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 72,560 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।